Dear students, in this lecture we have to study about the properties of progressive wave. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और वेव क्या होता है, वेव मोशन क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब वह वेव जो कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, उस वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। मीन्स द वेव्स विच propagates continuously in a particular direction or in a same direction, such a wave is called progressive wave. But here you have to study the properties of the progressive wave. अब progressive waves के properties क्या होंगे? तो first property of the progressive wave is each particle of the medium executes the same type of vibration. Particle vibrate about their mean position performing SHM. So now here consider the wave is propagating along this direction. The wave is propagating along this direction. So here the wave is propagating along this x-axis and the particle is vibrating along the y-axis. This is origin. So therefore this is the mean position because the particle is vibrating along the y-axis. So therefore this position is the mean position. If the wave is not propagating, for example suppose that there is a water, वेव प्रोपगेट नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब कि मीन पोजीशन में है। बट व्हेन द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड एट एनी पॉइंट, therefore this disturbance means energy will be propagate in the form of the disturbance from that point of the disturbance. तो यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस हुआ मतलब कि वहाँ से एनर्जी डिस्टर्बेंस के फॉर्म में मतलब वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करेगी और उसी को हम वेव मोशन कहते हैं। इस प्रोपगेशन ऑफ दिस एनर्जी थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड वेव मोशन एंड बिकॉज द energy is propagating in the form of the wave through the medium, therefore this is the mechanical wave. तो ये वेव प्रोपगेट कर रही है। Now here particle is located here. Suppose that any particle is located here. At this position, what is the displacement of the particle? This is the displacement of the particle. At this position, what is the displacement of the particle? That is 0. That is the particle is at the mean position. At this position, what is the displacement? Particle will be here because wave is just like propagating through this particle. तो पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? ये पार्टिकल की पोजीशन है। दिस इज ए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हियर, 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 दिस इज ए पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो एट पर्टिकुलर distance from this point of disturbance, the particle having different position and the particle attains this maximum displacement and also this maximum displacement. तो यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल अचीव करेगा, यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल अचीव करेगा। और ये वेव जब पार्टिकल से प्रोपगेट कर रही है तो आप एज्यूम करो डायरेक्ट वेव यहाँ नहीं आई, ये वेव कहाँ आई होगी? यहाँ पे। तो इन दिस पोजीशन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? जस्ट एट द मीन पोजीशन। फिर ये पार्ट जब पार्टिकल को टच किया तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हुई होगी? ये पार्टिकल की पोजीशन होगी। जब ये पार्ट ऑफ द वेव, यह वेव जब पार्टिकल को टच की तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? ये पार्टिकल की पोजीशन होगी।
ऐसे ही जब ये पार्टिकल को टच किया तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, फिर से यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ आने के बाद फिर पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। यहाँ आने के बाद पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। फिर ये टच किया, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे आई। फिर ये टच किया, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे आई। ये टच करने के बाद यहाँ, मीन्स द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस। Particle is vibrating like this, and this is the maximum displacement of the particle, that is called amplitude. This is called amplitude. So you can say each particle of the medium executes the same type of vibration, that is this type of vibration, and particle vibrate about their mean position. This is a mean position, so therefore particle vibrate about the mean position, and this type of vibration is called simple harmonic motion. And second property of the simple progressive wave, all vibrating particles of the medium have the same amplitude. Same amplitude, period and frequency. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, आपने यहाँ का पार्टिकल सपोज किया, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना होगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल और दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी भी वही सिचुएशन होगी, ये भी एक्सट्रीम को जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब इट विल वाइब्रेट लाइक दिस। तो देयरफॉर मैक्सिमम displacement, that is called amplitude. So therefore amplitude of this particle will be same like this particle, and also here the particle will be vibrating like this, means every particle having the same amplitude, means the particle will vibrate all vibrating particles of the medium have the same एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी सेम होगा, सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। एम्पलीट्यूड सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी जितने वाइब्रेशन पर सेकेंड ये पार्टिकल परफॉर्म करेगा उतना ही वाइब्रेशन पर सेकेंड ये भी पार्टिकल परफॉर्म करेगा, मीन्स एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स द सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एंड पीरियड, पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं पीरियड और पीरियडिक टाइम। तो यहाँ का जो पार्टिकल है जस्ट टचेज द एक्सट्रीम, देन लोअर एक्सट्रीम, देन रीचेज हियर, नाउ वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। मतलब पार्टिकल ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ से मीन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे आएगा, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। तो एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैविंग द
same amplitude, frequency and period or periodic time. Now, the third property of the progressive wave. The phase, that is the state of vibration of the particle, changes from one particle to another particle. जिसे वेव प्रोपगेट कर रही है, दैट वेव इज द प्रोग्रेसिव वेव. तो यहाँ पे क्या होगा, द फेज ऑफ वाइब्रेशन और स्टेट ऑफ वाइब्रेशन changes from one particle to another. Now here you can observe here what is the phase of vibration, that is the state of vibration. यहाँ पे state of vibration क्या है, this is the state of vibration. Now here what is the state of vibration, this is the state of vibration. In this way, between these two positions you can observe different particles having the different state of vibration. So therefore the phase changes from particle to particle. यहाँ पे ये जो state of vibration है और यहाँ पे state of vibration है, दोनों पे phase सेम हो जाता है, phase of oscillation. तो इस तरह से जब ये पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे आया तो आप देख रहे हो, यहाँ पे आने के बाद से तो फेज ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होता है, जिसको हम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल भी बोलते हैं. तो चेंजेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. और फोर्थ पॉइंट है, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. Each particle comes to rest momentarily while at the extreme of the vibration. इसमें कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे है, कोई भी पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पोजीशन पे नहीं है. इस पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, this particle, you can't say this is a permanently rest. You can observe here, this is a mean position, but this is not in the rest position. Why? बिकॉज हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस मीन्स परफॉर्मिंग SHM. अब आप इमेजिन करो, पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से फिर किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं. पार्टिकल विल नॉट स्टॉप हियर बट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो हियर द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. यहाँ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ऐसे मूव करते हुए जाएगा. फिर यहाँ आने के बाद से मोमेंटरीली द पार्टिकल विल स्टॉप बट वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. और यहाँ रुकने के बाद से यह फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. और यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप करेगा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड देन अगेन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी गेन्ड बाय एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम. तो देयरफॉर यू कैन से द नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली रेस्ट. कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में नहीं होगा. रेस्ट पोजीशन में वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पार्टिकल होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा, एट द एक्सट्रीम पोजीशन. एंड देन फिफ्थ पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इज, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव. The particle attains maximum velocity. The particle attains maximum velocity. Particles attain maximum velocity. when they pass through their mean position.
आप याद करो लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में हमने ये एक्सप्लेन किया था, स्टडी किया हुआ है। This is the mean position, this is the extreme position. Say this is a positive extreme, this is a negative extreme, you can say. Now particle is moving like this. The force is acting on a particle at different positions, and that force bring the particle in the mean position, that is the equilibrium position, and that force is restoring force. मीन पोजीशन पे क्या होता है? मीन पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है। इसीलिए पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आता है, बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। बट हियर एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पार्टिकल यहाँ स्टॉप क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देयर इज अ मोमेंटम, इट डज नॉट स्टॉप्स। और ये अगेन इस पोजीशन पे आएगा, फिर इस पोजीशन पे आएगा। इस तरह से पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम हियर। तो नाउ हियर दिस इज ए मीन पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हियर विल बी मैक्सिमम। तो thus you can say the particle attains maximum velocity when they pass through the mean position. And sixth point is, during the propagation of the wave, energy is transferred along the wave. During the propagation, this is sixth point, during the propagation of the wave, energy is transferred along the wave. Along the wave. There is no transfer of matter. Now look here in this example, the wave is propagating in the positive direction of x-axis. Means disturbance is propagating along this direction. Means energy is transferred in this direction. How the energy is transferred in this direction? While the particle is not migrating, particle is at the same position. Particle only vibrating, not particle is moving. पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल अपने पोजीशन पे है, लेकिन एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मीन्स पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग एट द सेम पोजीशन, नॉट पार्टिकल इज प्रोपोगेटिंग। तो प्रोपोगेट क्या कर रहा है? प्रोपोगेट एनर्जी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। मीन्स वेव इज प्रोपोगेटिंग, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग। So direction of vibration of the particle is along the y-axis and direction of the propagation of the wave is along x-axis. So the energy is transferred along the wave. Energy कैसे transfer होती है? Suppose that there are number of particles. बहुत सारे particles हैं medium के अंदर। ये particle जब energy लेता है तो vibrate करता है,
और यह एनर्जी को अपने नाइबरिंग पार्टिकल को देता है, ट्रांसफ़र करता है। ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है, इस तरह से ये वाइब्रेट करने लगता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। और सबको एनर्जी एक साथ नहीं मिलती है, इसलिए एक ही वक्त में सारे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते। पहले एनर्जी किसको मिली? इसको मिली, इसने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, इसके बाद एनर्जी इसको मिली, ये इसके बाद वाइब्रेशन स्टार्ट किया, इसके बाद इसको एनर्जी मिली, इसलिए इसके बाद ये वाइब्रेशन स्टार्ट किया। तो इस तरह से वेव का फॉर्मेशन, वेव प्रोपगेट कर रही है। तो सारे पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट नहीं करेंगे, सारे पार्टिकल एक ही टाइम में वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले जो डिस्टरबेंस के क्लोजर पार्टिकल है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, इसलिए कि उसको एनर्जी पहले मिली। इसके बाद उसका नाइबरिंग पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता जाएगा और एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मतलब डिस्टरबेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। कोई भी पार्टिकल अपने जगह से माइग्रेट नहीं होगा, पार्टिकल अपने जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करेगा। Now the seventh property of the progressive wave is the wave propagates through medium with a certain velocity. This velocity depends upon the properties of the elasticity. मतलब वेव जो प्रोपगेट करती है किसी भी मीडियम से, तो वेव की वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा? वेव की वेलोसिटी डिपेंड करेगा मीडियम के इलास्टिसिटी के ऊपर। और इलास्टिसिटी क्या होता है? यू नो दैट इलास्टिसिटी इज ए वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विच द पार्टिकल और बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन completely. Such a property is called elasticity. एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेजिन करो, किसी बॉडी को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी के ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे? वह फोर्स जो बॉडी के शेप, बॉडी के डायमेंशन के अंदर बॉडी में तब्दीली लाना चाहता है। तब्दीली टेंड्स टू चेंज द डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी। वह फोर्स जो बॉडी के डायमेंशन को चेंज करता है या चेंज करना चाहता है, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। किसी बॉडी के ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और अगर बॉडी डिफॉर्म भी होता है तो वह अपने ओरिजिनल डायमेंशन को फिर से रीगेन कर लेता है बॉडी के रिमूव करने के, फोर्स के रिमूव करने के बाद। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ये ब्लैक बोर्ड को मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। फोर्स हटाने के बाद हल्का सा ये डिफॉर्म हुआ, लेकिन फोर्स हटाने के बाद यह अपने ओरिजिनल डायमेंशन को फिर से रीगेन कर लिया, मतलब इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो वेव की वेलोसिटी, जो वेव किसी मीडियम से प्रोपगेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है कि बॉडी की इलास्टिसिटी कैसी है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। आप देखते हो वाटर में थोड़ा सा स्टोन ड्रॉप करो, वाटर का लेयर कंप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा स्टोन की वजह से। लेकिन जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपने रिमूव किया, वाटर अपने ओरिजिनल लेयर को रिगेन कर लेगा, अपने पोजीशन को रिगेन कर लेगा ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। एंड 8th point is progressive waves are of two types: transverse progressive wave and longitudinal progressive wave. Both are mechanical wave. You can say the transverse progressive wave and longitudinal progressive wave, both are the mechanical wave. So what is the transverse progressive wave? The wave in which the particles of the medium vibrates in a direction perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Such a wave is called transverse wave. If the wave is propagating in this direction,
that is in the x direction, so therefore the particles of the medium will vibrate along the y-axis, means perpendicular to the direction of the propagation of the wave. Wave का direction ये है, particle के vibration का direction ये है, that is perpendicular. Such type of wave is called transverse wave. एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोले, सॉरी ट्रांसवर्स वेव में एक चीज़ और एक्सप्लेन करना है. इन ट्रांसवर्स वेव व्हेन द वेव इज प्रोपगेटिंग देन मीडियम विल डिवाइड अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ. दिस पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, दिस पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ, दिस इज अगेन क्रस्ट, दिस इज अगेन ट्रफ. तो इसमें आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो क्रस्ट और ट्रफ्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है. इतने डिस्टेंस के बाद ये अगला क्रस्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट क्रस्ट कहाँ पे बनेगा, इतने ही डिस्टेंस के बाद बनेगा अगला क्रस्ट बनेगा. तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस सेम है, दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस सेम है, और इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ. ये आगे पढ़ेंगे और 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा हुआ है. इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, you know that particles vibrates in a direction parallel to the direction of the propagation of the wave. Such a wave is called longitudinal wave. Example हमने दिया था longitudinal wave के लिए. This is a rigid support and this is a spring. Now stretch this spring, stretch करके और छोड़ दो. जब स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा इस तरह से. तो ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन यू कैन ऑब्जर्व हियर this type of vibration of the particle. Here, because the particles are crowded, vibrating in a direction parallel to the direction of the propagation of the wave. Wave is propagating in this direction. Wave इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, in this direction. But particle also vibrating in the same direction. पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द propagation of the wave. And this position here, you can observe here, the particles are crowded. So therefore this position is called compression. And in this position particles of the medium are rarefacted. So therefore this position is called rarefaction. This is again compression, this is a rarefaction, this is a compression, this is a rarefaction, and this is compression. You can observe here the compression, the distance between any two consecutive compression is same. The distance between these two compressions is again same. And you know in the 11th standard इसको आपने पढ़ा है कि the distance between any two consecutive compression or the distance between any two consecutive rarefaction is called wavelength. तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन होगा. तो 10th पॉइंट है of this characteristic, both the transverse as well as longitudinal wave transverse and longitudinal waves, these are mechanical waves. So therefore medium will be required for their propagation, तो can propagate through solid. Propagates through solids.
लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों ही वेव सॉलिड से प्रोपगेट कर सकते हैं, बट ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू फ्लूइड। मतलब कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों ही वेव सॉलिड से प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव फ्लूइड से प्रोपगेट कर सकता है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव सॉलिड से भी प्रोपगेट कर सकता है और फ्लूइड से भी प्रोपगेट कर सकता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से प्रोपगेट कर सकता है। You know that one example of the longitudinal wave। पहले तो आप ये समझो what is the fluid। फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड वह है जो फ्लो होता है, that is called fluid। For example, air is a fluid, gas is a fluid, water is a fluid, oil is a fluid। लॉन्गिट्यूडिनल का वेव का एक बेस्ट एग्जाम्पल है साउंड वेव। You know that sound wave is प्रोपोगेटिंग थ्रू द एयर एंड एयर इज ए फ्लूइड। अगर आप वाटर की बात करते हो तो साउंड वेव वाटर में भी प्रोपोगेट करती है, बस वेलोसिटी चेंज होता है डिफरेंट मीडियम में। साउंड वेव की अगर बात करेंगे तो वह सॉलिड में भी प्रोपोगेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पाइप आप लेते हो, स्टील पाइप, दैट इज ए सॉलिड, तो उससे भी साउंड प्रोपोगेट होता है। तो these are characteristics, that is the properties of progressive wave। Now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.